girls should not ride the bike or drive the car because they are not a good rider comparatively to the boys because they they don't have control over their mind while driving or in kind of a very big situation. While if they see a truck, they become very nervous at that time. They try to move away from that big situation, but they can't because they don't have so much patience as boys have, and they can manage. They can't manage as boys can. Faculty members and my dear friends, for the topic cell phone in college for students, and I'm going to speak in favor of this topic. Yes, it is very much important for students having cell phone because nowadays cell phone is not merely for making and receiving calls. It does a lot of multitasking, such as finding the data about a particular topic, checking mails, because in 24 hours we spend about 6 to 7 hours in our college. So how can we be without a proper communication device? It is very much important because in today's life we can't just do without a communication device. So cell phone plays a vital role in making our life simpler and easier. Suppose if you are in college and one of your friend finds himself in deep trouble and seeks help of yours. And if you do not have the cell phone, and by the way if he calls you, then he finds himself in a real danger. So we must have cell phone. And also we can take an example of our college only. There are two buildings. Suppose somebody is sitting there and one is searching that person in that engineering building. It will be quite difficult for him to frequently come do up and down to this building, that building. And if he keeps a phone, then he can directly just send him a message on making a call that a particular faculty is calling you out. So in that way it will be beneficial. There are several other reasons for having cell phone for students in a college. Just because I am running short of time, that I cannot explain it more. Thank you. मेरे अकॉर्डिंग लव मैरिज होना चाहिए क्योंकि किसी भी पर्सन को बिना जाने और पहचाने कोई भी पर्सन कैसे मैरिज कर सकता है। लेकिन हमारा जो फ्यूचर रहा है, पहले का पास्ट टाइम रहा है, जो हम लोगों का बैकग्राउंड रहा है, एंशिएंट टाइम में क्या रहता था कि हम लोगों के जो पंडित लोग जाते थे, हम लोगों के फैमिली मेम्बर्स जाते थे, तो वो लोग डिसाइड करते थे, जो पर्सन रहते थे शादी करने वाले, उन्हें मालूम ही नहीं रहता था किससे शादी हो रही है या फिर नहीं हो रही है। तो लेकिन अब जो मॉडर्न आ गया, हम लोग में मॉडर्न जमाना आ गया, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग को उसमें जानना चाहिए कि हम लोग ये हमारे अकॉर्डिंग चलेगा या हम इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग लव मैरिज बेटर है। वैसे लव मैरिज की बात अगर लव आफ्टर अरेंज हो तो ज़्यादा बेटर है, तो क्योंकि हम लोग भी ये फैमिली मेम्बर्स भी जो है एक्सेप्ट करेंगे, तो लव मैरिज मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया है। और अगर हम लोग बात करें अपने इंडिया कंट्री की, तो मुंबई की बात करें, बेंगलोर की बात करें या फिर अपने भोपाल की बात करते हैं, तो नाउ डेज मोस्टली 50 और 60% ऐसा ही देखा जा रहा है कि लव मैरिज के केस ज़्यादा आ रहा है। लेकिन इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम भी हो रही है, लेकिन उसको ओवरकम करना चाहिए हमको और उस पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए कि लव मैरिज बेटर। थैंक यू। My topic is what about co-education. मुझे इसके केवल बोलना है। मैं इसके बारे में बोल सकता हूँ कि co-education होना चाहिए क्योंकि आगे जाकर हमें अगर यहाँ डिग्री कंप्लीट करते हैं तो आगे हमें जब भी फैक्ट्री या कहीं मतलब ड्यूटी करनी पड़ती है, तो वहाँ भी हमें लड़कियों के साथ मतलब ड्यूटी करना पड़ता है। तो अगर सभी समय से एजुकेशन खत्म हो तो वहाँ हम मतलब विदाउट हेजिटेशन काम कर सकते हैं। और हर जगह हमें मतलब क्या है कि लड़के लड़की जो होती है, मतलब लड़के लड़की साथ में काम करना ही पड़ता है। पहले के ज़माने अलग थे कि लड़के लड़के अलग अलग इंडिविजुअल रहते थे, अब जो है स्कूल कॉलेज हर जगह जो है एक साथ लड़के लड़के बैठकर मतलब पढ़ते हैं। इस तरह की कोशिश में हम इसका सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ये प्रेजेंट लेकर फ्यूचर तक ये हमारे जो एडवांटेज हैं कि एक साथ मतलब वो होना चाहिए, दोनों के साथ मतलब पढ़ लिखना चाहिए। और इसका मतलब ये कर सकते हैं कि ये मतलब हमारे फ्यूचर के लिए भी बेनिफिट है। थैंक यू। My dear friends,
मोशन। बेसिकली कॉलेज में देखा जाता है कि बच्चे क्लासेस कम अटेंड करते हैं और कैंटीन में बैठे गॉसिप करते हैं या म्यूजिक सुनते हैं या गार्डन में बैठे रहते हैं, तो इससे उनकी पढ़ाई पे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है और फालतू की एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं और सेलफोन का मिसयूज़ अधिक देखा जाता है। सेलफोन एक तरह से अच्छा ऑप्शन है क्योंकि इससे पेरेंट्स को काफ़ी सेफ लगता है, क्योंकि पेरेंट्स को अगर कुछ इन्फॉर्म करना है अपने बच्चों को तो वो इसके थ्रू इजीली उन्हें कॉल कर सकते हैं और टेक्स्ट कर सकते हैं। बट लेकिन यही अगर बच्चे उसका मिसयूज़ करें इवन कॉलेज में, क्योंकि पेरेंट्स को तो यही लगता है कि बच्चे जा रहे हैं कॉलेज पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन अगर वो यहाँ आके अपना मिसयूज़ कर रहे हैं फ़ोन का तो ये बहुत ही गलत होगा। और कहीं कहीं देखा जाता है कि अगर टीचर क्लासेस में लेक्चर ले रहे हैं, बच्चे अगर बच्चों के पास उन्हीं टीचर्स का अगर फ़ोन नंबर है तो पीछे से कॉल करेंगे उन्हें, तो इससे टीचर्स भी डिस्टर्ब होते हैं, बाकी स्टूडेंट्स भी डिस्टर्ब होते हैं। तो ये एक बहुत ही इफेक्टिव पॉइंट है जो कि डिस्टर्ब किया जाता है। तो मेरे ख्याल से कि कैंपस में तो बिल्कुल अलाउ नहीं होना चाहिए सेलफोन। तो आई एम एंडिंग विद दिस। Good afternoon to everybody, faculties, judges, my dear friends. I'm Shivangi Dixit, yes, 4th sem, and my topic is Apna Sapna Mani Mani, and I am speaking against of this motion. वैसे तो यहाँ पर सभी पढ़ाई कर रहे हैं, डिग्री कंप्लीट करना चाहते हैं सिर्फ पैसे कमाने के लिए, ताकि उनका एक सेफ सिक्योर फ्यूचर हो जाए, उनका भी और उनके आगे आने वाली जनरेशन का भी। लेकिन कुछ लोग, बहुत कम परसेंटेज ऐसा होता है जो सिर्फ अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए पढ़ते हैं। और लाइक अगर देखा जाए तो जो बाहर की लाइब्रेरीज होती हैं, लाइक भोपाल में विवेकानंद लाइब्रेरी भी है, उसमें मोस्टली ओल्ड जनरेशन ही दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि वो अपना, कहा जाता है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, तो वो लोग ओल्ड जनरेशन अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए ही पढ़ते हैं। वो लोग जॉब भी कर रहे होते हैं पर उनको उससे कोई मतलब नहीं होता, उन्हें सिर्फ अपना नॉलेज बढ़ाना होता है। कॉलेजेस में और स्कूल्स में भी देखा जाता है जिनका सिलेक्शन होता है IITs एंड AIEEE एंड बाहर के कॉलेजेस में, वो भी उनमें से कुछ ही परसेंटेज बच्चे ऐसे होते हैं जिनको अपना नॉलेज बढ़ाना होता है। बाकी तो सारे पैसे कमाने के लिए, अरे IIT में सिलेक्शन हो गया अब तो अच्छा जॉब मिल जाएगा, सेफ सिक्योर फ्यूचर हो जाएगा, माँ बाप खुश हो गए, यही होता है। वैसे तो पैसा बहुत इम्पोर्टेंट रखता है सबकी ज़िंदगी में, पर नॉलेज बढ़ाने के लिए और खुद का दिमाग रिकवर करने के लिए हमें पैसे से ज़्यादा नॉलेज को प्रेफर करना चाहिए। एंड आई एग्री कि सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता, नॉलेज भी बहुत कुछ होता है। थैंक यू।
All the best. Let's start. As per your wish. आंसर्स मार्क करते रहिए, उसी नंबर मिलेंगे। Look at the options carefully. सारे ऑप्शंस पे ध्यान दें। No murmuring. Options are West Indies, South Africa, Australia, Sri Lanka. Wrong answer. Answer is music. Okay. Team D. President of Pakistan is. आसिफ अली जरदारी। Okay, right answer. चलिए खादा बड़ा E के इसमें 5 अंक। Full form of HTTP is. Very good. Correct. Okay. Team F. First question. Subrato Cup is related to which game? Subrato Cup. Subrato Cup is related to which game? बाकी तो चुप है। Final answer? ARC is. You can say pass. The South Asian Association for Regional Cooperation. Very good. Perfect answer. +5. Very good. +10. Team C. Olympics 2012 was held in which country? Team C. Decibel is a unit of साउंड। very good. +10. Normal heartbeat rate of a human is 72. Very good. 72 beats per minute. Team E. Narmada originates from. Very good. +10. Team F. Mount Abu is situated in which state? You can say pass. Baki team please. You can say pass or answer. Goa is a union territory. True or false? Okay, right answer. Sonata is okay. Watch that. Right. Women's Day is celebrated on. Wrong. Formula for glucose is. Yes. Very good. Right answer. C6H12O6. Winner of last IPL is. Wrong answer. Kolkata Knight Riders. Okay. Another name of Buddha is. Another name of Gautam Buddha is. Last one answer. Okay. Next. Spell. आपको बोलना है. Spell Bernoulli. Spelling बताइए. Anyone? Very good. Right answer. Ramos is a. Very good. All questions completed. Very good. Team C. Are you ready? Yes, sir. Okay. First question. Land of rising sun. Pass. Okay. Number of bones in humans are. Sorry. Number of bones in humans are. 206. Correct.
Thank you guys. संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारो,
तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया। Thank you guys. जादू कर दिया मेरा है मेरा जिया, जाने क्या होगा क्या पता, इस पल को मिलके आज ही ले जरा। Come on guys, मैं हूँ यहाँ, तू है यहाँ, मेरी बाहों में अब जा। ओ जाने जा दोनों जहां, मेरी बाहों में अब जा। ओ जाने जा दोनों जहां, मेरी बाहों में भूल जा। I need you all to clap. Come on, guys. Rhythm चाहिए ना मुझे? कर दिया दीवाना कर दे खास ने, चैन छीना इश्क के एहसास ने, बेख्याल की है तेरे प्यास में, चाहे सुरूर है कुछ तो जरूर है। ये दूरियां जीने न दे हाल मेरा तुझे न पता। ओ जाने जा दोनों जहां, मेरी बाहों में अब जा। ओ जाने जा दोनों जहां, मेरी बाहों में अब जा। मेरी नज़र ने कैसा जादू कर दिया, तेरा मन बैठा है मेरा जिया। कैसे जिया तेरे बिन, लेकर यादें तेरी, बातें मेरी बनी, लेकर यादें तेरी, रातें मेरी भूल से भी कभी तू मिल जाए कहीं, भूले ना तुझ बिन रात मेरी, दिन मेरे दिन के जैसे नहीं, यूं सांस लूं यूं मैं जीऊं, जीना बुरा सा लगे, आजा मेरे अब रूबरू, जीना नहीं बिन तेरे, तेरे बिन मैं कैसे जिया तेरे बिन मैं कैसे जिया, कैसे जिया। कब से आंखें बनी कब से आंखें मेरी राह में तेरी बिछी, भूल से भी कभी तू मिल जाए कहीं, भूले ना तुझ बिन रात मेरी, दिन मेरे दिन के जैसे नहीं, यूं सांस लूं यूं मैं जीऊं, जीना बुरा सा लगे, आजा मैं रूबरू, जीना नहीं बिन तेरे, तेरे बिन
Shining in the setting sun like a pearl upon the ocean. Come heal me, come heal me. Thinking about the love we make and the love we share. Come feel me, come feel me. Shining in the setting sun like a pearl upon the ocean. Come feel me, come on heal me. Check. तेरा होने लगा हूँ, होने लगा हूँ, जब से मिला हूँ। तेरा होने लगा हूँ, होने लगा हूँ, जब से मिला हूँ। वैसे तो मन मेरा पड़ भी रातों में अक्सर ही चाहत के हाँ सपने सजोता था। मेरी धड़कन ये धुन तो ही गाती थी, पर अब जो होता है वो पहले न होता था। हाँ भाई तेरा होने लगा हूँ, होने लगा हूँ, जब से मिला हूँ। आँखों से छू के बांध तरसती है, दिल ने पुकारा है हाँ, अब तो चले आओ, आओ के शबनम की बूंदें बरसती है, मौसम इशारा है हाँ, अब तो चले आओ। जब आप लोग के साथ में रहेंगे काउंट करूंगा। तेरा होने लगा हूँ, होने लगा हूँ, जब से मिला हूँ। तेरा होने लगा हूँ, होने लगा हूँ,
बल जाऊं अपने पिया को कि मैं जाऊं बारी बारी मोहे शुद्ध बुद्ध ना रही तन मन की ये तो जाने दुनिया सारी बेबस और लाचार फिरूं मैं हारी मैं दिल हारी हारी मैं दिल हारी तेरे नाम से जीऊं तेरे नाम से मर जाऊं तेरे नाम से जी लूं तेरे नाम से मर जाऊं तेरी जान की सद में कुछ ऐसा कर जाऊं तूने क्या कर डाला मर गई मैं मिट गई मैं हो जी आज हो गई मैं तेरी दीवानी दीवानी तेरी दीवानी दीवानी इश्क का जादू जब चढ़ जाए इश्क का जादू जब सर चढ़ कर बोले खूब लगा लो पहरे रस्ते रब खोले यही इश्क दी मर्जी है यही रब दी मर्जी है यही इश्क दी मर्जी है यही रब दी मर्जी है तेरे बिन जीना कैसा हाँ खुद गर्जी है तूने क्या कर डाला मर गई मैं मिट गई मैं हो जी हाँ जी हो गई मैं तेरी दीवानी दीवानी तेरी दीवानी दीवानी हो तेरी दीवानी मैं अलबेली मैं मस्तानी गाँव बजाऊं सबको रिझाऊं तेरी दीवानी हो तेरी दीवानी तेरे नाम से जी लूं तेरे नाम से मर जाऊं तेरी जान की सद में कुछ ऐसा कर जाऊं तूने क्या कर डाला मर गई मैं मिट गई मैं हो जी हाँ जी हो गई मैं तेरी दीवानी दीवानी। और जिनकी आवाज से ही सुरों का ज्ञान होता है मैं आप सबके सामने पेश कर रहा हूँ सिंगरौली मध्य प्रदेश का चमकता नगीना प्रिया पांडे। आवाज दो हमको
जो मंजूर उड़ गए, हो अखियां जो मंजूर उड़ गए, पानी दा रंग बेच के, पानी दा रंग बेच के, मेरी अखियां जो मंजूर उड़ गए, हो अखियां जो मंजूर उड़ गए, कमली हो गए तेरे बिना आधा रांझण मेरे, कमली हो गए तेरे बिना आधा रांझण मेरे, बारिश बरखा सब कुछ कैसे आया, ओ बारिश बरखा सब कुछ कैसे आया, मेरे अक्का दा नूर देख के, अक्का दा नूर देख के, मेरी अखियां जो मंजूर होंगे, ओ अखियां जो मंजूर होंगे, पर खुदा आसमानी चे जा सब है मगर है तुझे ढूंढे ये नजर, तू आया ना आई खबर, साथिया बेलिया कच्चे धागे सच्चे प्यार के न तोड़ना, तेरे बिन नहीं जीना मर जाना डोलना, तेरे बिन नहीं जीना मर जाना डोलना, भीगी भीगी सी मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे मेरे, जैसे मेरे सपने बिखर के, जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भीतर से, मेरी भीगी भीगी सी, मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे मेरे, जैसे मेरे सपने बिखर के, जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भीतर से, बिन तुझे जाने बिन पहचाने मैंने हृदय से लगाया, पर मेरे प्यार के बदले में तूने मुझको ये दिन दिखलाया, तेरी बेवफाई पे हंसी जग सारा, गली गली गुजर जिधर से,
चाहे कुछ न कहना, भले चुप तू रहना, मुझे है पता तेरे प्यार का खामोश चेहरा, आँखों में पहरा खुद है गवाह तेरे प्यार का, तेरी झुकी नजर तेरी हर अदा मुझे कह रही है ये दास्तां। कोई शख्स है जो कि इन दिनों मेरे सहम दिल पे है छा रहा, तेरी झुकी नजर तेरी हर अदा मुझे कह रही है ये दास्तां। तेरी जुल्फ जब भी बिखर जाती है, ऐ हंसी तू हंसी और हो जाती है, जो किताबों में पढ़ते रहे आज तक वो परी हमको तुझ में नजर आती है, तेरी ही बाहों में पनाहों में रहना मुझे हरदम सदा, तेरी ही यादों में निगाहों में रहना मुझे हरदम सदा, तेरी ही बाहों में पनाहों में रहना मुझे गुलाबी आंखें जो तेरी देखी सराबी आता है कुछ
के जियो, गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, न मुँह छुपा के जियो और न कर झुका के जियो। घटा में छुप के सितारे बना नहीं होते, घटा में छुप के सितारे बना नहीं होते। आपको हेलो। झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा कहीं दिल में प्यार है कि नहीं। झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सही दिल में प्यार है कि नहीं। तू अपने दिल की जमा धड़कनों को गिन के बता, तू अपने दिल की जवा धड़कनों को गिन के बता। मेरी तरह तेरा दिल बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा कहीं दिल में प्यार है कि नहीं। झुकी झुकी सी नजर। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, फिर ना क्यों हो जाए सारा जहां हमारा। आज हमें मौका है हाथ में, तो क्यों न बनाए डांस की 10, 11, 12। जिनका कहना है मैं जो बोलता हूँ मैं करता हूँ, और जो नहीं बोलता वो डेफिनेटली करता हूँ। सो प्लीज कम ऑन द स्टेज शिवम कुमार। तुझसे दूर मैं भी हूँ मजबूर, दिल को सताए तेरी अखियों पर बात ये सच्ची आज तुझको बताऊं। मुझे समझ नहीं आता कैसे दूर या मिटाऊं, बस तेरे लिए मैं ये गीत लिखते जाऊं। दिन रात ही मैं इन्हें गुनगुनाऊं, फोन में फोटो तेरी देखूं बारी बारी। जी करता जवा में मार के उड़ारी। Charlie, the Michael Magari. Some cool John of the home, bड़ा गिलाड़ी। दुनिया चले Charlie, the Michael Magari. Some cool John of the home, बड़ा गिलाड़ी। सुमड़ी में लेके जाऊं और सबको मैं सिखाऊं क्या। चिंता ता चिंता चिंता चिंता
Namaste, Dasta ma'am. कुछ मेहरबानियाँ मैं
The shade of the night, a distant reflection, a caught in my eye. Is this real? 'Cause I feel like you're my heart's beating faster, you're taking my hand and drawing me closer as we start to dance. I know I've been lost in your smile many times, but not this way. Won't you stay and hold me in your arms forever? Don't want this night to fade away. I thought my eyes were closed, but I'm in a dream away. I'm in a dream away. अगर उसकी ज़िंदगी में अगर फीमेल नहीं रहेगी तो ऑनेस्टली बहुत अधूरी रहेगी, क्योंकि वही है जो उसकी कमियों को बताती है और वही है जो उसको सही राह दिखाती है। अगर वो गलत है तो उसको सही बताती है और ज़िंदगी के हर सुख दुख में उसका साथ देती है। अगर वो नहीं रहेगी तो उसका मुझे नहीं लगता कि कोई अपना होगा। एक वाइफ के अलावा एक हस्बैंड का कोई, एक आदमी का कोई होगा। जैसा कि आपने कहा, बेटे के रूप में पेरेंट्स की ज़िंदगी में क्या भूमिका होती है बेटी की,
तो मैं ये कहना चाहूँगी आजकल बेटियों का ही ज़माना और बेटियाँ ही आगे हैं सबसे। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण है हमारी पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल। तो बेटी जो होती है वो माँ बाप के सुख दुख में साथ होती है, घर का काम भी करती है, बाहर के काम भी करती है। बॉय से हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, वो सिर्फ बाहर तक ही सीमित रहते हैं, घर का काम उनके बस में रहती है। If you join some position as an employee and your boss is a woman, what would you please her? अगर तुम्हारी बॉस कोई महिला रही तो उसको प्लीज करने के तुम क्या करोगे? जैसा कि सर आपने क्वेश्चन किया कि जब मैं किसी कंपनी पे जाऊंगा और वहाँ अगर वहाँ की बॉस कोई लेडी होगी तो मैं उससे कैसे हैंडल करूँगा। तो सर सबसे पहले किसी भी कंपनी पे जाने के लिए अगर हम वहाँ का काम बहुत अच्छा करते हैं, ऑनेस्टली करते हैं, तो सीधी सी बात है कि वो हमें रिस्पेक्ट देगी। और अगर हम काम के प्रति लॉयल हैं तो मुझे लगता है कि कभी कोई आपको पीछे रोक नहीं सकता। एक अच्छी बहू कहलाने के लिए कौन कौन से मुख्य चीजें उसके पास होनी चाहिए, व्यवहारिक और अन्य? फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून एवरीवन। एंड जैसा कि आपका क्वेश्चन है, तो सबसे पहले जो बिहेवियर होता है एक लड़की का, पहले वो अपने घर में होती है बट आगे चल के उसे किसी और के घर जाना होता है। सो बिहेवियर इज मस्ट। अगर आप अच्छा बिहेव करोगे तो सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट है। सेकेंड थिंग इज अपने से बड़ों की चाहे वो कुछ भी हमें बोले, हमें बिना कुछ आर्ग्यू किए एकदम रिस्पेक्ट से बिहेव करना चाहिए हमें। एंड देन बाकी जो छोटे तो ऑब्वियसली स्वीट होते ही हैं, तो अकॉर्डिंग टू मी सबसे अच्छा बिहेव करें और सबसे फ्रेंकली रहें तो ज़्यादा सही होगा। यदि शिक्षा ना हो तो हम किसी के साथ बैठे रहते हैं, जो शिक्षा होता है उसकी थिंक और जो बहुत ज़्यादा होता है। तो शिक्षा बहुत जरूरी है क्योंकि आगे बढ़ना ही मेरे ख्याल से तो जो आजकल शिवानी चल रही है इसे बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इससे शॉर्ट हो जाता है पढ़ाई का, और जो बच्चे हैं वो मेन बुक से कम पढ़ते हैं और पूरी बुक से पढ़ने की बजाय शिवानी यूज़ करते हैं, तो पूरा कोर्स की स्टडी नहीं कर पाते एक साथ, तो पूरा उसका शॉर्ट फॉर्म में पढ़ जाता है उसको। आपके पास कौन से 10 क्वालिटीज कोई व्यक्ति आपको अपना मित्र बना, 10 क्वालिटीज दिन पाएगा? Confidence, the way I interact, friendliness, trust maintain कर सकते हैं, क्योंकि मैं ट्रस्ट तोड़ने वाला नहीं। The main सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, बाकी जो सामने वाला माइंड में क्या है, जो वो अपने फ्रेंड में देखना चाहेगा, जो भी क्वालिटीज, आई आज के टाइम में लुक्स को भी बहुत मैटर, लुक्स इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो आई थिंक लुक्स में भी मैं तो नहीं कह सकती, बट उतना तो है एक्चुअली। आपकी क्लास में टीचिंग हो रही है या कोई कार्यक्रम चल रहा है और वहाँ पर कुछ स्टूडेंट अनुशासनहीनता करते हैं, तो उस समय आपका दायित्व क्या होगा, क्या दायित्व पूरा करेंगे? सबसे पहले अपने एचओडी को सूचित करें, उसके बाद वो अपना लीगल एक्शन लेंगे और जहाँ तक हो सकेगा सर थोड़ा बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे अगर हो सकता है तो, बाकी उसकी बात करेंगे। शिवम, आजकल इतनी सारी घटनाएं हो रही है जहाँ लोगों का जो एटीट्यूड है महिलाओं का बहुत बड़ा खराब देखने में प्रतीत हो रहा है। पुरुषों को महिलाओं के प्रति सेंसिटाइज करने के लिए क्या करना चाहिए? ऐसा क्या किया जाए कि संवेदनशीलता और पैदा हो, किस तरीके से समाज का हर छात्र हर युवा महिलाओं को क्या करना चाहिए? अपनी सोच ऐसे बनती है कि हमें फ्यूचर को लेकर चलना चाहिए कि हमारे घर में सब होते हैं, ऐसा तो नहीं होता कि पड़ोसी पुरुष में एक महिला भी होती है।
तो उन्हें समझ गए कि अगर कल को हमारी टीम में घर पर अगर बाहर आगे अगर कुछ ऐसा है तो जेंट्स तो बहुत बातें घर में घर के लोग परेशान कर जाते हैं। तो अपनी सोच पे डिपेंड करता है, अगर वो सोच के अगर हम नहीं और सुधारने के लिए इसकी सोच रहती है, तो उसकी सोच कि सर महिला को या नारी को प्रेम का रूप Answer is that women is called goddess because they take very special part in men's life. They do their work with all their hard work. They manage their home very well. ड्रेस आपने अपनी चॉइस से पहनी है। I'm Maharashtrian and I belong to Maharashtra. और अभी आप एमपी में हैं, फिर भी आपने ड्रेस पहनी, इसमें आपको विशेष अपना कुछ अच्छा लगता है? मुझे महाराष्ट्र कल्चर बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मेरी मम्मी जो है वो महाराष्ट्र की है, तो इसलिए मैंने महाराष्ट्र कल्चर पढ़ा। Dr. Gaurav Raj Bhagat, Chief Advisor, Swami Vivekanand College, Dr. R.S. Kushwaha, Director, Swami Vivekanand College, Mr. Rakesh Vishwakarma, Registrar, Swami Vivekanand College, and Mr. S.K. Bhatta, Administrative Officer, Swami Vivekanand College. My seniors, colleagues, my juniors, and dearest students, I like to extend my sincerest and cordial thanks to all to make this event Goonj 2K30 a voice and effort a successful one. Despite of the schedule, our dignitaries took time to address this valedictory function. Good afternoon, everybody. आज 3 दिवसीय टेक फेस्ट कार्यक्रम के समापन समारोह में मैं अपने अजीज और संस्था के चीफ एडवाइजर डॉक्टर गौरव राज भगत का संस्था की ओर से और अपनी ओर से आत्मीय स्वागत करता हूँ। इसके साथ आपको शायद जानकारी नहीं होगी, मैं अवगत करा दूं, डॉक्टर गौरव राज भगत को नेशनल लेवल का एक बहुत बड़ा अवार्ड डिक्लेयर हुआ है, भारत शिक्षा रत्न। अवार्ड उनके लिए 6 मई को सेंट्रल मिनिस्ट्री द्वारा प्रदान किया जाएगा, जिसके लिए हम उनके लिए बहुत बहुत आत्मीय हार्दिक बधाइयाँ देते हैं। उपस्थित हमारे रजिस्ट्रार डॉक्टर R.K. विश्वकर्मा, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बाटो जी, सभी ब्रांचेस के HOD, इसके अलावा टीचिंग फैकल्टी, नॉन टीचिंग स्टाफ एवं अपने प्रिय विद्यार्थियों का मैं इस कार्यक्रम में
टॉपिक पे। अभी मैं आप लोगों का कार्यक्रम देख रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों ने मुझे पीछे धकेल दिया। अपना स्टूडेंट लाइफ मुझे याद आने लगा और लोग डांस कर रहे थे, संगीत गा रहे थे, गजलें भी कुछ लोग सुना रहे थे। बड़ा अच्छा लगा, बड़ी अच्छी अनुभूति हुई और मैं उस अनुभूति में इतना भर कहना चाहूँगा, ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, नहीं तो आप लोग कुछ कटाक्ष करने लगेंगे। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चपकाए, टूटे से जुड़ता नहीं, जुड़ेगा बन जाए। प्रोत्साहित करने के लिए मैं भी सर के शब्द में कुछ ऐड करना चाहूंगी। इट्स नॉट द साइज ऑफ मैन इन द फाइट, साइज ऑफ द फाइट इन मैन। इन्हीं लाइनों के साथ आई वुड लाइक टू वेलकम आवर चीफ एडवाइजर सर डॉक्टर गौरव राज भगत to say a few words to our students. Please. Honorable Director Dr. Ram Singh Kushwaha, Registrar Mr. Rakesh Vishwakarma, always in a hurry Mr. S.K. Bhatia, Administrative Officer, my dear colleagues, all my dear friends who are here as a part of our wonderful and beautiful faculty, and my dear students. इतनी खूबसूरत शब्दकोश मेरे पास नहीं है कि मैं क्लिष्ट हिंदी का इस्तेमाल कर सकूं जैसे कुशवाहा जी करते हैं। Still I would love to use some of the beautiful words. सबसे पहले मैं हमारे जो दो कोऑर्डिनेटर्स हैं मीनल और सुरेश जिन लोगों ने इस कार्यक्रम को अंजाम दिया उन लोगों को बधाई देना चाहता हूँ और सारे जितने भी स्टाफ मेंबर्स हमारे जिन लोगों ने दिन रात करके इस कार्यक्रम को अंजाम दिया, हमारे सारे छात्र जिन लोगों ने बहुत मेहनत करी और इस कार्यक्रम को यहाँ तक पहुँचाया। बहुत कम सुविधाओं के रहते हुए हमारे पास एक ऑडिटोरियम हॉल नहीं है। मैं निरंतर बातचीत में लगा हूँ करण के साथ, एक बड़ा ऑडिटोरियम हॉल होना चाहिए। उसके बावजूद आप लोगों ने इस छोटे से कमरे को इतना खूबसूरत ऑडिटोरियम हॉल बना दिया, उसके लिए मैं आप सब लोगों को बधाई देना चाहता हूँ। सारे छात्र छात्राएं आज मंच पर बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे, पर किसी को जीतना है किसी को हारना है, प्रकृति का नियम है। इसलिए आप लोग हताश ना हो, क्योंकि आपको आज के इस कार्यक्रम में जीतना हासिल हो, क्योंकि हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। अभी मैं आने से पहले नॉवल पढ़ रहा था कमरे में, और वहां मैंने एक लाइन पढ़ी जिसका हिंदी अनुवाद ये था कि जो शायर थे, जो लेखक थे, उन्होंने लिखा कि धरती में और प्रकृति में इतना ज्यादा, इतनी अपार संपत्ति, इतनी अपार खूबसूरती, इतना अपार पैसा है, लेकिन उसको वही व्यक्ति पाएगा जिसके अंदर जज्बा है और मेहनत करने की लगन है। इसलिए गरीब आदमी हमेशा गरीब रहेगा, क्योंकि वो हमेशा अपनी गरीबी को कोसता रहेगा। अमीर वही बनेगा जिसमें अमीर बनने का जज्बा होगा, ऐसा उसने लिखा था। और काफी हद तक वो सही है। आपके अंदर वो जज्बा मुझे यहाँ देखा, लेकिन उस जज्बे का रास्ता सही नहीं दिखा। आप लोग सबके अंदर मेहनत और जज्बा कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में देखा, बट यू नीड टू डेवलप एंड शाइन योरसेल्फ टू मच बेटर लेवल इन एवरीथिंग। आपका नॉलेज लेवल, आपका एजुकेशन लेवल, आपका फ्लुएंसी, आपका कम्युनिकेशन, हर चीज पर आपकी कमांड होनी बहुत जरूरी है। और जब तक वो जज्बा आपके अंदर नहीं होगा, सारी किस्मत आपके हक में होते हुए भी शायद सफलता आपसे कोसों दूर चली जाए। इसलिए जज्बे के साथ साथ उस चीज को पाने के वो सारे हथियार आपके पास होने बहुत जरूरी है। और पिछले 3 साल के अंदर जो विकास मैं आप लोगों के अंदर देख रहा हूँ वो सराहनीय है। डायरेक्टर साहब की मेहनत सराहनीय है। दिन रात जिस प्रकार वो परिश्रम करते हैं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने हमारे बच्चों को इतना अच्छे से ग्रूम किया। मैं तो दिन भर HR का काम करता रहता हूँ, पॉलिसी मेकिंग करता रहता हूँ, कमरे से बाहर निकलने का मौका नहीं मिल पाता, आप लोगों से रूबरू होने का मौका नहीं मिल पाता। आप लोगों की जानकारी मुझे डायरेक्टर और रजिस्ट्रार और AO साहब से मिलती है और बड़ी खुशी होती है जान करके। पर अनुशासन की थोड़ी सी कमी है संस्था के अंदर, छात्रों के अंदर। उस अनुशासन का पालन करें और
दूसरा मैं एक चीज़ और देखता हूँ कि आप लोगों के अंदर पढ़ने की प्रति कोई जागरूकता नहीं है। जो नोटिस बोर्ड पे लगता है उसको ध्यान से नहीं पढ़ते हो। नोटिस बोर्ड पे लिखी हुई हर चीज़, हर शब्द को ध्यान से पढ़ो, क्योंकि नोटिस बोर्ड के माध्यम से ही हम संवाद करते हैं। और यदि आप उसको ध्यान से उसको नजर में रखेंगे तो शायद आप और रिवाइंड होंगे। इन सारी चीज़ों के साथ मैं आज कहना चाहता हूँ कि आज पिछले 3 साल में ये आज पहला एक ऐसा कार्यक्रम रहा होगा जहाँ मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई। 2-3 कारण है। पहला कारण कि हम पहले सारे कार्यक्रम वर्कशॉप में करते थे। वर्कशॉप बड़ा था, हम वहाँ उसका इस्तेमाल करते थे। इस बार छात्रों को भी और हमारे कोऑर्डिनेटर्स को कि हम सेमिनार हॉल का इस्तेमाल करेंगे और हम वहाँ पर कार्यक्रम करने का प्रयास करेंगे। बहुत सीमित रिसोर्सेज की और बहुत कम समय अवधि के अंदर आपने इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया। सारे एचओडी और सारे फैकल्टी ने जी जान लगा दी रोबो रेस, डीबगिंग, कंप्यूटर साइंस में और ब्रिज मेकिंग जैसे अच्छे कार्यक्रम आपने सिविल इंजीनियरिंग में करी। जहाँ तक कि आपके रंगोली और बाकी प्रकार के अलग अलग विभिन्न कार्यक्रम आपने करे और वो इतने कम अवधि के अंदर आपने इस छोटे से इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके करे। मैं आप सब लोगों को उस चीज़ के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। डायरेक्टर सर से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो चीफ एडवाइजर सर को सम्मानित करें उनकी शिक्षा रखने के लिए। On behalf of SC family, it's a proud for us to have Dr. Gaurav Raj Pavel with us. Please give them a big round of applause. And certificate distribution ceremony. First, we will be proceeding with Academic Excellence Award for 2nd, 4th and 6th semester students, which they have achieved during the academic. Scored 7.73 SGPM and got first rank in the class. Please have a big round of applause. Second is Sharif Hassan. Aditya Shukla. May I request HP sir to take us away. Rahul Thakur second. Rahul Thakur and Saurabh Kumar third. Saurabh Kumar third. For the civil branch we have Vivek Costa first rank. Vivek Costa first. Sudeep Tiwari second. Isha is third. He is also the topper of the college. And Zubair Tariq, he is also got first rank with 8.31 CGPA. We have second Ram Avtar Patel. Ram Avtar Patel second rank. Ram Avtar Patel second rank. Now for CS fourth we have Dharmendra. Third is Ravi Dwivedi. For CS 6 we have Sachin Soni first rank. Amit Kumar Singh second rank and Abhishek Kumar Singh third rank. For EC 6 semester we have Anyanta Tiwari first rank. Kumar second rank and Kamal Kishore third rank. For IT 6th semester we have Durgesh Chandra first rank and Rajneesh Tiwari third rank. Third rank for Robotis. Janvi Pandey and team. Isha for bridge making third rank. Ma'am, thank you. Thank you, sir. Now I request Monish Bhagat for solo song second rank. We have Ganga Ahipar for 92nd position.
and Rahul Petaka for poem writing second position. There. Ram Avtar Patel and team. Second rank. Kumendra Nissan and team for admin second rank. We have Shivam Kumar and team for volleyball runners up. Shivam Kumar and team. And Vivek Costa and team for treasure and second position. Vivek Costa and team for treasure and second. Dinesh Singh Tomar for second position in badminton. Request secretaries to please Shivendra Parihar for table tennis second. Runners up. Shivendra Singh Parihar. Now it's time. Shivangi Dikshit for solo dance first position. Shivangi Dikshit. And also Shivangi Dikshit for painting first position. Monish Bhagat for painting. Bitu Chaudhary first position. Chaudhary. Thank you, directors of the classes. For Karen first. Rahul Meher. Monish Bhagat for debugging coding first prize. Bhakta Parihar for debugging coding. We have Bhaktiya and team. Rangoli first position. Cock interview first position. First position. Sachin Shoni and Kunal Kumar for tag quiz first position. Monish Bhagat team for treasure and first position. Please have a big round of applause for him. We have Yadvendra from City College for land gaming first prize. We have Vinay Pratap Maurya for chess. Shashank Tiwari for table tennis first prize. Ashutosh Patel. I would like to take this opportunity to thank our management who has allowed us to conduct this program. I would also like to take this opportunity to thank our Chief Advisor, Dr. Gaurav Raj Bhagat, for his vision. I would also like to take this opportunity to thank each and everyone who are involved in this program. Further, not the least, I would like to thank all the students for participating in the program and making the program a successful event. Thank you all. Bhuvneshwar Jaiswal, CS, to present memento Dr. Gaurav Raj Bhagat, Chief Advisor, Swami Vivekananda College. I request Mr. Suraj Srivastav, HOD Applied Sciences, to present. Please give them a big round of applause. I would like to thank all the dignitaries on the dais to take out the time for the valedictory function. Thank you so much, sir.